Can you tell us what are the new age career options that will be in demand in next 10 to 15 years? So there's nothing, there's this marketing gimmick called New Age Careers. So that people click on that YouTube, click on that Instagram and people look at it. It's just a marketing gimmick. Is it right to say that arts is only for weak students and all those who score well must choose science Gone are or those days. commerce? Gone are those days. Do you feel, be it sports or any other hobby, that can turn into their career? Absolutely. There are a section of students who are always confused. उनका area of interest हमेशा change ही होता रहता है. Confusion is a good place to be. Think back to the first time when someone asked you, so what do you want to become? And your mind goes, doctor, engineer, designer, creator, or maybe just, I honestly don't know yet. And you know what? The confusion is completely normal. Welcome to Planet Tave, a space where we talk about real questions, real choices, and real journeys. I'm Shweta Bajaj, and today's episode is for every student who feels stuck between expectations, marks, and a future that feels a little too unclear. Joining me today is a renowned motivational speaker and career guidance expert, widely loved by children and young adults, Mr. Anubhav Rakheja. He helps students look beyond the noise, understand their strengths, explore the right option, and choose paths that actually fit who they are. In this episode, we are diving into career counseling, what it really means, why it's more important than ever, and answering the questions students are silently struggling with right now. If you're standing at crossroads, unsure of your next step, this conversation might just give you the clarity you're looking for. Welcome to the show, Anubhav. Thank you. So we'll begin with the same question. What was your childhood like? And when you were asked, what do you want to become? What was your usual answer? So as far as my childhood is concerned, in terms of academics, I was a below average student. Okay. And always under a shadow of a big brother who was an intelligent, flamboyant and a very strong academic performance based individual in the school. तो हमेशा ये सुनने को मिलता था, देखा है उसको, सीखो कुछ मुझे उससे. तारे ज़मीं के विजुअल्स आ रहे हैं. नहीं, तारे ज़मीं was even, I think Ishan Avasthi was much better. So Oh God. the only thing what I used to go to school was go, eat and sleep. And that's what I used to do. My career is totally by chance. It is not by choice. And I think that's my counseling punchline, that this generation is making a career by choice, not by chance. Yeah. So mine was by chance. By chance. By chance. Yes. And I also feel that this generation, they want a career which gives them not only money, but also happiness. Happiness question, you know, hashtag mental health and all these things are trending. So जो भी trending है इस generation को चाहिए. आजकल mental health, counselor के पास जाना, psychologist के पास जाना भी एक flamboyant approach है. तो इस generation को वो चाहिए. कल इसको इस generation को हकूना मटाटा चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, you But don't I be feel surprised. this is also really something positive, that if you need help, Yeah. you come out, you speak about it कि हाँ मुझे help चाहिए, and then you go to the counselor. As compared to, I would feel a few years back when asking for help was also a taboo कि इसको counselor क्यों चाहिए, मतलब अपना दिमाग नहीं है इसमें. आजकल तो ये status symbol है that मुझे counselor चाहिए. So and most of the cases if you realize, counselor की जरूरत है नहीं. Okay. It's just that they need someone to talk. Oh. Normally क्या है, वो Instagram, phone और wall से ही बात कर रहा है बच्चा. हाँ. Both the parents are working. Working. Economical इतना crunch है, and fees इतनी high है, and cost of living इतना बढ़ चुका है. Right. एक parent घर चला रहा है, एक parent school की fees दे रहा है. Absolutely. तो there is no one to talk. To talk to, right. तो कोई ना कोई तो बात करने के लिए चाहिए. चाहिए. एंड फ्रेंड सर्कल भी आजकल जजमेंटल हो चुका है. सरनेम देखा जा रहा है फ्रेंड सर्कल में क्या है, हमारी यू नो इनकम के ब्रैकेट के अंडर है नहीं है. What cars you have, your living style, what brands you're wearing, and everything. Instead of a counselor, they need someone to talk. To talk. ये साइकोलॉजिकल काउंसलर की बात हो रही है. yeah. एकेडमिक काउंसलर सबको चाहिए. प्लीज मेक अ नोट, सबको चाहिए. Right. So there are a section of students who are always confused. उनका area of interest हमेशा change ही होता रहता है, and as a result, parents are also under pressure कि ये जाना किस stream में चाहेगा. I mean,
there is a certain phase when a child feels inclined towards science, physics, and all that, and then there is a phase when certainly they are inclined towards art or music. So this creates a lot of confusion कि ये आगे जाकर कौन सा stream लेगा या इसका favorite subject क्या है, what is the area of interest. So what do you have to say about this कि ये जो area of interest होते हैं, these phases, the temporary phases, how should one look at these phases? First and foremost, I think everyone needs to make a point of this. Confusion is a good place to be in. Okay. कंफ्यूजन होना परफेक्ट प्लेस है स्टूडेंट के लिए भी और पेरेंट के लिए भी आज की डेट में. Okay. अगर कंफ्यूजन नहीं है और वो बिल्कुल अर्जुन की नजर की तरह देख रहा Focused है, है, हाँ. फोकस्ड है, हाँ. दैट्स अ रिस्की प्रपोजिशन. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Okay. मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है. Okay. आईआईटी ही जाना है, आईआईटी दिल्ली में ही जाना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहिए. मैं इतना ऑब्सेस्ड हो चुका हूं अपने गोल के साथ कि मैं जिंदगी में जी रहा हूं, सो रहा हूं, सुन रहा हूं, सिर्फ आईआईटी ही देख रहा हूं. Right. करेक्ट. हाँ. नहीं अचीव हुआ तो Yeah. मोर देन 30 suicides in Kota. Yes. Is that what you want from the child? Yeah. Is that वो genuine वाला mental health pressure? Is that what you want from the child? Or you want to put your child into a situation कि देख IIT नहीं भी हुआ तो chill. There is a next best option in Indian Statistical Institute where you can do a stats and data science का course and you can still take up artificial intelligence. Right. Or you can take an IMI, which is Indian Mathematical Institute. You can still get into data science. You can take a BSc Computer Science. Right. And you can still get into a data science. Perfect. Or you can take a mathematical science and still get into a data science. So in my opinion, confusion is a good space to be in because you want a happy child, you want a good child, but you don't want to lose a child. And you don't want to lose the childhood. Yeah. Let him be confused because confusion will enable him to explore. Explore. Perfect. Yes. So dear parents, listeners, anyone whosoever ever listens to this podcast, my only suggestion is confusion is a fantastic space to be in. True. Now, there are times when a child scores good in particular subject, but that subject is not his area of interest. Correct. So, while choosing the stream, what should we consider? The marks the child has scored or the area of interest? It's a combination. It's a combination of 5-6 things before you choose a subject. First and foremost, to this Indian listener community, student community and parent community, there is nothing called stream selection. Okay. CBSE भी ये नहीं बोलता stream selection है. It is a subject selection. Okay. I'll not name a school, but there is very prominent school in Delhi NCR, which gives you science without chemistry. Oh. And they give you commerce without business studies. Oh, that's very rare. It is a subject selection. Acha. It is not a stream selection. First, they need to put this in mind. हाँ, that because mindset तो यही है ना, science, commerce, arts. नहीं, साइंस इसलिए लिया जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों आते हैं. Right. और मोर देन 25-30 इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जेई के एंट्रेंस एग्जाम के बाद या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम के बाद वो जिंदगी में केमिस्ट्री कभी पढ़ता भी नहीं है. पढ़ता भी नहीं है, राइट. सिमिलरली मेडिसिन के एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी आता है और शायद उस एंट्रेंस के बाद वो फिजिक्स कभी जिंदगी में नहीं पढ़ेगा. करेक्ट. सो वो इसलिए वो स्ट्रीम ऐसा कंबाइन करके बनाया हुआ है ताकि वो गेटवे क्लियर कर पाए. अदरवाइज इट इज अ सब्जेक्ट सिलेक्शन मैम, इट इज नेवर अ स्ट्रीम सिलेक्शन. और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए आपको 5-6 चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है. अच्छा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू लुक एट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके. सपोज मैं इकोनॉमिक्स करना चाहता हूं तो इकोनॉमिक्स करने के लिए मेरे पास 11-12 में इकोनॉमिक्स नहीं हो तो चलेगा, बट मैथ्स होना जरूरी है. अगर मुझे साइकोलॉजी करना है और मेरे पास 11-12 में साइकोलॉजी नहीं है, चलेगा. तो अगर कोई साइकोलॉजी करना चाहता है तो उसे साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है 11-12 में. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज फर्स्ट थिंग व्हाट अ स्टूडेंट नीड्स टू चेक एंड देन चूज अ सब्जेक्ट. सेकंड पॉइंट व्हाट आई वांट टू से इज योर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में बहुत सारा पैटर्न आ जाएगा कि लॉन्ग आवर्स आप पढ़ सकते हो या फिर आपको शॉर्ट ड्यूरेशंस में पढ़ना है. हाँ. मैं स्क्वॉश का नेशनल लेवल प्लेयर हूं, मैं स्विमर हूं. मुझे ये पता है कि मुझे स्टेडियम में जाके 6 घंटे की प्रैक्टिस रोज करनी है. ओके. तो क्या मैं लेबोरियस सब्जेक्ट कर पाऊंगा? क्या मैं मैथमेटिक्स में उतना टाइम दे पाऊंगा दिन में? क्या मैं फिजिक्स में उतना टाइम दे पाऊंगा दिन में? नहीं दे पाएंगे ऑब्वियसली. सो अगर मेरे का इंटरेस्ट है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट है टुवर्ड्स ड्रामेटिक्स, इंटरेस्ट है टुवर्ड्स थिएटर, इंटरेस्ट है टुवर्ड्स डिबेटिंग, तो मेरे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बेसिस पे मुझे सब्जेक्ट लेना चाहिए.
eligibility criteria, time management, interest, aptitude, attitude, studying style. Okay. These are 4-5 things what a student, teacher, counselor, tutor, and a parent, the entire team, if they come together and make a consensus कि ये वाला subject बच्चे के लिए अच्छा है, that is how they need to select. Okay. So just as you mentioned कि आप swimmer, like you're into swimming, if a child is into squash or whatever sports and all, do you feel be it sports or any other hobby that can turn into their career? Absolutely. Okay. Absolutely. आप अगर एक हॉबी को पिक करेंगे ये सोच के कि मुझे इसमें करियर बनाना है, तो मोस्ट लाइकली वो करियर नहीं बनेगा. Okay. बट अब अगर आप एक हॉबी करते हैं, उसमें आप कंसिस्टेंट है, उसमें आप परसिस्टेंट है और उसको आप एंजॉय करने लगते हैं, देन यू स्टार्ट लुकिंग अप टू अ नेक्स्ट लेवल. जब एक 6 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा पेंटिंग ब्रश उठाता है, उसे ये नहीं पता होता उसे आर्टिस्ट बनना है. हाँ. वो तो जब उसे पसंद करने लगता है तो वो जानता है कि मुझे प्रोडक्ट डिजाइन करना है और मैं आईआईटी में जा सकता हूं थ्रू माय क्रिएटिविटी, नॉट थ्रू पीसीएम. Okay. ये तो जब आप ये देखें ना, इफ यू पिक अप अ हॉबी, आई वाज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट, व्हिच इंडिविजुअल हैज लिव्ड द स्पोर्ट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स? टेल मी, नेम एन इंडिविजुअल हु हैज लिव्ड अप अ स्पोर्ट फॉर मोर देन 20 years. None. I'll tell you, Harsha Bhogle. अच्छा. Harsha Bhogle doesn't play cricket, हाँ. but he's a sports analyst. Yes, yes. He is still living cricket. He is still living with that passion. हाँ. Sachin Tendulkar could play about 20-22 years. हाँ. Virat Kohli could play about 17-18-20 years. And they are fantastic. But Harsha Bhogle is one who's living cricket for the last 40 years, Yes. 4 decades. Correct. So he liked playing cricket. He became a sports analyst. He became a sports journalist. He Yeah. became a sports spokesperson. Yeah, you create a career out of it. And you create a career out of. Why is it that sports is only about playing? Playing. True. So he would have played sports during his days. He would have not made a, and he's the only individual who's lived cricket for more than 40 years. 40 years. And the second person I can talk about is Gavaskar. Right. I don't know any other individual who's lived cricket for more than 40-50 years. And another thing you just mentioned was not taking maths. अगर आप इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप मैथ्स छोड़ सकते हैं. So do you think it limits your options? I won't say it limits your option, it will reduce your options. बिकॉज मैथ्स आज की डेट में मल्टीपल फॉर्म्स में आ चुका है. सो एक 11th-12th का स्टूडेंट नॉर्मल मैथ्स लेता है या फिर अप्लाइड मैथ्स लेता है या मैथ्स ड्रॉप करने की सोचता है. आई नो स्टूडेंट्स हु आर इन 9th-10th स्टैंडर्ड एंड दे वांट टू ड्रॉप मैथमेटिक्स Because they're scared of it. They're scared Including of- me, I yeah, have been always scared of maths. I was waiting for my grade 10th कि कब 10th का पेपर हो, मैथ्स और का मैं मैं maths की हाथ book जोड़ूं को इस burn किताब को. Not हाँ. burn करूं, but मैं तो दोबारा I'll never नहीं touch खोलूं. it. Yeah. हाँ. So at my point of time, I remember when we were in school, 8 out of 10 people used to say maths as my favorite subject. Yeah. And probably now 2.5-3 people out of 10 says maths is my favorite subject. और वो इसलिए है because you know, if you look at abroad education, more educationists or more teachers at a primary level and a lower level are paid higher. Okay. एक जूनियर क्लास का टीचर एक प्राइमरी क्लास के टीचर को ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कंपेयर टू अ कॉलेज प्रोफेसर, एज कंपेयर टू अ सीनियर स्कूल टीचर. Okay. बिकॉज दे बिलीव जिसको आप पढ़ा रहे हो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो किसी प्री कंसीव नोशन से नहीं आ रहा. यू आर टीचिंग एज गुड एज यू आर टीचिंग अ वॉल. Correct. एक 3 साल का बच्चा किस It's a प्रिपरेशन blank के साथ आ state रहा and है? you यस. can leave an impression. बट अगर मैं एसआरसीसी के प्रोफेसर्स के बारे में बात करूं, आईआईटीज के प्रोफेसर्स के बारे में बात करूं, आईएम्स के प्रोफेसर्स के बारे में बात करूं, दे आर पिकिंग द ब्रिलियंट माइंड्स एंड देन दे आर पॉलिशिंग देम. Correct. तो अगर मैं एसआरसीसी में, आईआईटीज में और आईएम्स में, ऑलमोस्ट ऑल द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में 1-1.5 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन नहीं भी पढ़ाऊंगा, हाँ. मुझे पता है दे आर गुड इनफ, दे विल पिक इट ऑन देयर ओन. Right. घोड़े को घोड़े बनाने में क्या मजा है? हाँ. एक एजुकेशनिस्ट के लिए तो वो थ्रिल है ना जहां पे वो गधे को घोड़ा बना दे. बट जो 3 साल का बच्चा क्लास में बैठा है जिसको कुछ नहीं आता है, इमेजिन द काइंड ऑफ हार्ड वर्क व्हाट एन academician is putting in. Yes. Imagine the kind of, वो हम कहते हैं ना, silly questions. हाँ. Imagine the kind of silly, nonsensic, meaningful and wildest of imagination questions. It drains you out Correct. completely. Yes. So the reward to a junior teacher is much higher in countries other than India. Okay.
Yeah, that I agree. yeah. Because when you said they are paid higher, मैं सोच रही थी ऐसा कहाँ इंडिया में तो नहीं होता. इंडिया में नहीं होता है. हाँ, So that's true. this is how probably education system needs to be taken care of. और वहीं पे मैथ्स का एलिमेंट आता है. Okay. मैथ्स पढ़ाया नहीं जाता है, मैथ्स पढ़ा जाता है. Hmm. जब तक आप हाथ नहीं चलाओगे, रजिस्टर नहीं भरोगे. भरोगे. मेरा मैथ्स का टीचर बहुत सिंपल सा था, एंड ही यूज्ड टू से ओनली वन थिंग. Hmm. Now when I send students to him, because he was my teacher and he's my master, he says only check one thing, that पुराने टीचर ने क्वेश्चंस रजिस्टर में खुद करे हैं या इससे कराए हैं. हाँ. अगर रजिस्टर टीचर के हैंडराइटिंग से डोमिनेटेड है तो मैथ्स नहीं आएगा. और मेहनत तो यहाँ हो नहीं रही है ना. मेहनत वाला सब्जेक्ट है. अब मैथ्स का एलिमेंट कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ रही है. Say for example, you cannot be an architect without maths. Correct. You cannot get into a merchant navy without maths. हाँ. You cannot get into economics without math. MUNs करता हूँ मैं, डिबेटिंग करता हूँ, मुझे पब्लिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, प्लानिंग कमीशन में जाना है. हाँ. इकोनॉमिक्स मुझे पढ़ना है. अब इसमें तो कहीं मैथ्स नहीं आएगा. हाँ. बट इकोनॉमिक्स अगर मुझे कॉलेज में चाहिए तो मुझे मैथ्स चाहिए. मैथ्स चाहिए. अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट का कोर्स, फाइनेंस का कोर्स करना है तो मैथ्स चाहिए. करेक्ट. स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स करने के लिए मैथ्स चाहिए. सरप्राइजिंग पार्ट देखिए हिंदुस्तान का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के लिए 11-12 में कंप्यूटर्स नहीं चाहिए, मैथ्स चाहिए. मैथ्स चाहिए. हाँ. दिसंबर में रिसेंटली आई एम बैंगलोर ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया व्हिच इज बीएससी इन इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस. ओके. Irrespective you are a science, commerce, humanities student, it really doesn't make a difference. What the difference is, मैथ्स चाहिए. बट मैम मुझे तो ये 9 ऑप्शंस करने ही नहीं. हाँ. लीव मैथ्स. बट आप मुझे बताइए ना, जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे या मैं 10th स्टैंडर्ड में था, क्या हमें पता था हमें क्या करना है? पता भी नहीं होता. एंड समटाइम्स इवन इफ वी नो, 12th तक आते आते हमें ऐसे लगता है कि हमें ये नहीं करना. वी ट्राई टू चेंज आवर पाथ. So एंड देन वी फील स्टक कि जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो तो हमने लिए ही नहीं. सो आप मैथमेटिक्स को स्टूडेंट के क्वाड्रेंट में डिवाइड करिए. पहला, मुझे ये 4 ऑप्शंस नहीं करने, डोंट चूज मैथ्स. ओके. सेकंड, मुझे ये 4-5-10 ऑप्शंस शायद करने हैं, शायद नहीं करने. तो कैरी मैथ्स फॉर अनदर ईयर और 2 एंड लुक एट द मैच्योरिटी लेवल. डोंट बी वरीड अबाउट योर मार्क्स. अब जैसे ही बोलूंगा डोंट बी वरीड अबाउट योर मार्क्स, ये पॉडकास्ट पेरेंट्स सुनेंगे ही नहीं. हाँ. करेक्ट. तो वो सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज़ हो गया. इंडियन स्कूलिंग ही इज ऑल अबाउट मार्क्स. मैथ्स रखो आप. हाँ. इंडियन नहीं, अब्रॉड स्कूलिंग इज आल्सो अबाउट मार्क्स. दिस इज अ मिथ. क्वाड्रेंट का जो सेकंड फेज है, कीप मैथमेटिक्स बट keep it to a level where it is required for an eligibility criteria. Okay. Third, I need more time to think. Keep math, and probably after 2 years, if you want to throw these careers out of your bag, throw them out. Because sometimes students के area of interest भी change हो जाता है. Bore हो रहे हैं, ये नहीं करना, अब कुछ और करना है. Fourth, the quadrant का fourth stage. मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट चाहिए तो मैं कैलकुलस वाला नॉर्मल मैथ्स लूंगा. मुझे कैलकुलस नहीं चाहिए तो मैं एक नया वाला जो अप्लाइड मैथ्स आया, जो बिजनेस मैथ्स यूज हो रहा है, मैं वो लूंगा. आपके मैथमेटिक्स का डिसीजन इज डिवाइडेड ऑन दीस 4 पार्ट्स. 4 parts. एंड यू पिक अ कॉल So it अबाउट. becomes simpler then. अगर आप ऐसे Absolutely. rationally सोचोगे. I have seen students who've taken maths in 11th left in 12th. Because So- actually 11th का maths is very difficult. And It's very not difficult, to it's cope up. different. It's different. And it's a very unreasonable transition. From a slide, they give you a roller coaster. Okay. पहले बच्चे को स्लाइड पे जाओ, फिर स्विंग्स कराओ, फिर धीरे धीरे लेके जाओ. वो ऐसा ट्रांजिशन है, वो समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या. It's different. Ma'am, there is difficulty level for a nursery child is as good as a difficulty level for a PhD student. Right. आपके लिए PhD करना उतना ही मुश्किल है Right. जितना एक नर्सरी के बच्चे के लिए Yeah. ABCD याद करना है. Actually. So there is no difficult. 10th का मैथ्स पढ़ते पढ़ते वो एक कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस या एक लाइन ऐसी क्लियर कर लेता है हाँ. कि उसे पता है अब तो ऐसा ही होने वाला है. But एक्सपेक्टेशन it's है. different. It's different. हाँ. There is nothing which is difficult. What is difficult for you is easier for me. What is easier for me is difficult for you. I remember this I must share. So I was in class 11th and obviously मैंने maths नहीं लिया था. हाँ. But our class was divided into a section of students who were having maths as well, and they used to go to another class to attend maths ka subject. So they came back one day and then they told कि हमारे exam का result आया है and the teacher has announced that Anubhav, you have scored the highest, but still you are failing. God. So that was the maths 11. That is even now that is maths grade 11th for me. I'm a maths trainer today.
I train students for CAT, GMAT, GRE, IPMAT, Okay. and I train students for mathematics and Vedic maths also. I can tell you 106 square is 11236. I can tell you 57 square is 3249. I don't use I think calculator. probably that is the reason you know that it is not difficult. It is actually different. Different, This yes. my perception has changed here today. And secondly, yes, that's true that if a 2-year-old child is learning ABCD in nursery, it is difficult for him. Absolutely. And if a 25-year-old person is doing PhD, that is difficult for him. So all it takes Equal- is practice. It's equally so filling difficult. up your registers with questions will Yes. only help you get through math. So is it right to say that arts is only for weak students and all those who score well must choose science Gone are or those days. commerce? Gone are those days. If you pick up the CBSE result for the last 10 years, more than 6 out of toppers of those 10 years have been a humanities students, by the way. I agree and I truly believe in that. But every day I come across at least one person who actually thinks like that. Uska It reason is hai. still a taboo. It is still like humanities. What will the relatives say? What I'll tell will you my office colleagues say? I'll अरे tell तुम्हारा दोस्त तो साइंस ले रहा है, peer pressure आ रहा है. I'll tell you, but you have to do a role reversal for this. Okay. I'll ask questions to you. Okay. एक मेडिकल का स्टूडेंट जिसका जिंदगी में बायोलॉजी लिया, उसका जिंदगी का सपना कॉलेज मतलब योर ड्रीम कॉलेज कौन सा है? Medical student, हाँ, AIMS. एम्स. हाँ. एक साइंस स्टूडेंट जिसने PCM लिया, उसके लिए ड्रीम कॉलेज कौन सा है? IIT. एक कॉमर्स के स्टूडेंट का ड्रीम कॉलेज कौन सा है? Shri Ram College. एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज? I don't know. एस्पिरेशनल वैल्यू. हाँ. हर चीज आज की डेट में पेरेंट हो स्टूडेंट हो उसको एस्पिरेशनल वैल्यू चाहिए. Hmm. और अगर मैं बताऊं ह्यूमैनिटीज का बेस्ट कॉलेज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा का ब्रांड नेम इन सबके ब्रांड नेम से बहुत ऊपर है. Yeah. दैट इज वेयर इट नॉक्स. Okay. यू नीड टू अंडरस्टैंड चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई या फिर परप्लेक्सिटी आपकी हेल्प तभी कर पाएगा जब आप उससे सही प्रॉम्प्ट पूछेंगे. Hmm. जब आप प्रॉम्प्ट ही ये पूछेंगे साइंस बेटर है, कॉमर्स बेटर है, ह्यूमैनिटीज बेटर है, तो वो स्टूपिड आंसर्स ही देगा. बट अगर आज मैं जानता हूं कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने के बाद मैं पॉलिसी मेकिंग में जा सकता हूं, Hmm. सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में जा सकता हूं और टाटा जैसा इंस्टीट्यूट मेरी रिस्पेक्ट करेगा, व्हिच इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस. Hmm. ऑक्सी ब्रिज जो एजुकेशन बनी हुई है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की, बनी इस फाउंडेशन पे है, लिबरल आर्ट्स के फाउंडेशन पे. Hmm. एंड क्या है ह्यूमैनिटीज? व्हाट इज ह्यूमैनिटीज? देयर इज नथिंग व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटीज. एक स्कूल ह्यूमैनिटीज कहता है इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, पॉल साइंस एंड साइकोलॉजी. Yeah. एक कहता है साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड Hindi. Yeah. Fine arts. कोई कहता है लीगल स्टडीज, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड Yeah, इंग्लिश. Yeah. क्या है ह्यूमैनिटीज? I feel humanities gives you wider options, It's a wider concept career of options. liberal arts derived from Oxford and Cambridge universities, Hmm. wherein you can pick up a combination of your subject. Hmm. मैं सिर्फ ये जानता हूं किसी की इंटरप्रिटेशन स्किल्स, किसी की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और किसी की प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर फैंटास्टिक है Hmm. तो वो ह्यूमैनिटीज का टॉपर बन सकता है. और अगर आप ह्यूमैनिटीज के साथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ले लो, I was coming to that. That is maths still relevant? इट इज किलर. बट मैं ये जानता हूं कि अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो तो शायद आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हो इवन फॉर एन एमबीए कोर्स. अच्छा. एमबीए करने के लिए एक फाउंडेशन, एक कैप है कि अगर आप जेम कैटेगरी से हो, जेम मींस जनरल इंजीनियर एंड मेल, Hmm. तो एक अच्छा आईएम्स आपसे मांगेगा 99.9 या 99.8 या 99.6 परसेंटाइल. Okay. मतलब ओनली 0.4 या 0.5% ऑफ द 3 लाख स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लियर. Right. अब 0.5% ऑफ 3 लाख हो गया 1,500 रैंक. Hmm. बट अगर मेरे पास ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है सपोज, Hmm. तो वही कॉलेज Hmm. मेरे से मांगेगा 96 या 97 परसेंटाइल. Hmm. मतलब मेरी रैंक हो जाएगी 20,000. Hmm. एक जगह तो आपसे बोल रहा है वो टॉप 1500 में आओ तब जाके मैं एडमिशन दूंगा. Hmm. और अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से और आपके पास डाइवर्सिटी है, आप कॉलेज को एक नई पर्सपेक्टिव दे सकते हो, Hmm. तो 20,000 रैंक पे भी आपको वो कॉलेज मिल जाएगा. Right. सो यू आर क्रॉसिंग द ब्रिज ऑफ 18,500 स्टूडेंट्स ऑन डे वन ओनली बाय चूजिंग ह्यूमैनिटीज. Right. अब Right. करते हैं आप इकोनॉमिक्स हो व्हिच इज बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स व्हिच इज बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, चाहिए उसमें मैथ्स. सो माय वेरी वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव इज humanities depends school to school, college to college, atmosphere to atmosphere, and that is the reason it is subject selection. It is not a stream It selection. is not a stream selection. Right. So humanities with maths and eco is a deadly combination. और 2022 से पहले Hmm. जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज के मार्क, स्कूल के मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता था, हाँ. तो ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स एंड इको के लिए इकोनॉमिक ऑनर्स को 2.5 to 3% का एडवांटेज मिलता था. Okay. मैं उसी कॉलेज की बात कर रहा हूं जिसने 2013 में टॉपर ऑफ द कंट्री सार्थक अग्रवाल को 99.6 पे भी ना वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था. आप 99.6 लाते हो और सेंट स्टीफेंस कॉलेज आपको कहता है यू आर इन द वेटिंग लिस्ट. Hmm.
Imagine the kind of message what is going to the student and parent community. Yeah. वही कॉलेज कहता है कि अगर आपके पास मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स विद ह्यूमैनिटीज है तो मैं वही कोर्स आपको कट ऑफ से, एक कॉमर्स के कट ऑफ से 2.5% का एडवांटेज दे रहा हूं. मतलब आई एम गिविंग यू एन एडवांटेज ऑफ ब्लडी 10 मार्क्स. सो इट कैन क्रिएट वंडर्स, बट अगेन इट इज नॉट अ टेम्पलेट. इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन. आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप लंबे आंसर नहीं लिख सकते, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स नहीं है, आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स नहीं है, आपको रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डोंट चूज ह्यूमैनिटीज. आप न्यूमेरिकल अप्रोच के हो, आपको टर्नओवर्स अच्छे लगते हैं, आपको शार्क टैंक्स अच्छा लगता है, आपको वैल्यूएशंस अच्छी लगती है. आप जानते हो आप एक इंसान के सामने बैठे हो जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ है. हाँ. और उसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है. हाँ. कैसे? तो आपको अकाउंट्स फाइनेंस पढ़ने की जरूरत है. राइट. सो द नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू आस्क इज कि बहुत बार स्ट्रीम सिलेक्शन या कॉलेज सिलेक्शन जो होता है वो पीयर प्रेशर में, दोस्तों को देख के, अरे यार मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, या मेरा दोस्त कॉमर्स में जा रहा है मैं भी कॉमर्स में चला जाता हूँ, ऐसे होता है. एंड देन लेटर ऑन वी रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड वी आर इन द रॉन्ग प्लेस. सो इफ़ we have already chosen the wrong stream, for example we now want to do something that requires science in 11th and 12th, so what are the ways out? And I'll be very honest to you, peer pressure तो होना चाहिए. Okay. क्योंकि peer pressure एक अलग चीज है, इंस्पिरेशन एक अलग चीज है, और बहुत थिन लाइन है इसमें. हाँ. peer pressure ये है कि मैं इन्फ्लुएंस में आ रहा हूँ. हाँ. और इंस्पिरेशन ये है कि वो 95 ला रहा है तो मैं 95 लाऊं. सो पीयर प्रेशर को थोड़ा लेवल तक पेनिट्रेट करने दीजिए, इट इज ओके, बट उसको स्टूडेंट की प्रिपरेशन पैटर्न, स्ट्रेटेजी, स्टडिंग स्टाइल पर हावी मत होने दीजिए. समटाइम्स आई फील द इन्फ्लुएंस इज रॉन्ग. मतलब स्पेशली एट द टाइम व्हेन यू हैव टू चूज द कॉलेज. करेक्ट. तो क्लास में 10 बच्चे तो अब्रॉड जा रहे हैं. करेक्ट. अब वो बड़ा इन्फ्लुएंस ऐसे आ रहा है कि यू फील दैट फोमो कि अच्छा ये लोग जा रहे हैं, मैंने तो कुछ तैयारी ही नहीं करी, मैंने फॉर्म ही नहीं भरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि यार यूएस के या यूके के भी फॉर्म्स भरने हैं. करेक्ट. ओहो हम तो पीछे रह गए, ये आगे निकल गए. कोई जरूरत ही नहीं. दैट्स अ डिफरेंट अगेन. वहां पे एक पेरेंट और स्टूडेंट को कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए. यू अप्लाई टू दीज इंटरनेशनल कॉलेजेस, you get scholarship, we'll send you. You don't get a scholarship, sit here. Okay. But which is better, staying in India or studying abroad? It depends. See, this particular decision, again I say, it is not a template for everyone. If you have a risk-taking ability, if you can afford the cost of living, and if your aspiration is to settle abroad, okay, I think education visa at an international level is the easiest thing to go. यही अगर मैं बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ आज की डेट में इन माय 40s, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क. राइट. सो अगर आप एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं, अगर आप पीआरशिप के लिए जा रहे हैं, अगर आप देखिए 2+2 हर कॉलेज में सेम ही पढ़ाया जाएगा. A+B का होल स्क्वायर सेम होगा, लिमिट्स, फंक्शन, कंटिन्यूटी सेम होगा. एग्जैक्टली. बट वहां का इतना रोजी पिक्चर दो स्टूडेंट्स कम बैक एंड टेल टू देयर फ्रेंड्स. वो एक रीजन है ना, बिकॉज़ टुडे इफ आई वांट टू सेट अप माय काउंसलिंग ऑफिस इन स्पेन, आई नो देयर इज अ बैचमेट हु विल हेल्प मी आउट. I know if I have to set up somewhere in China, if I have to set up somewhere in Singapore, my course which was done in foreign university will have that diversity and will give me that leaps and bounces का advantage what is not to a regular student. आज अगर मैंने इंडियन एजुकेशन करी है और मैं दुबई में, सिंगापुर में, यूएस में, यूके में ऑफिस खोलना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, आई विल अप्रोच लिंक्डइन, आई विल सी द राइट सेट ऑफ पीपल, देन प्रॉब्ली आई विल जेल अलोंग विद देम. 6 महीने का प्रोसेस है. उसके बाद मैं चैनल पार्टनर बनाऊंगा, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट्स देखूंगा, उसके बाद मैं फंड रेज करूंगा. और यही अगर मैंने कॉलेज एजुकेशन करी है जहाँ पे एक स्पेन का, एक चाइना का, एक आयरलैंड का, एक नीदरलैंड का स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहा है, जिसने 3 साल मेरे हॉस्टल में मेरे साथ बीआरपी है, जिसने मेरे साथ असाइनमेंट्स करे हैं, वो लड़की जिसने डायग्राम्स बनाए मेरे कॉलेज के, तो शी इज जस्ट अ कॉल अवे. बड़ी ऑफिस खोलना है, पॉलिसीज क्या है, टैक्सेशन क्या है, यू आर ऑलरेडी इनटू इट, यू मेक कनेक्शंस. नेटवर्किंग. आप शार्क टैंक्स का भी कोई एपिसोड देखें, सबसे पहले वही पूछते हैं विच कॉलेज, एंड देयर इज अ नेटवर्क कनेक्शन. राइट. एंड कॉलेजेस टुडे आर अ प्लेस ऑफ कनेक्शंस. क्योंकि कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन में YouTube में भी वो चीज फ्री पढ़ाई जा रही है. हाँ. I have to. This is my area of discussion again. YouTube पे वो फ्री पढ़ाया जा रहा है. कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में आप नेटवर्क बनाने जा रहे हैं. तो जिसमें ज़ील है खुद पढ़ने की, वो तो पढ़ तो कहीं से भी सकता है. बट कनेक्शंस कहीं भी नहीं मिलते हैं. हाँ. Those connections will help you later. और कॉलेजेस में फिर प्लेसमेंट्स भी है. तो अब्रॉड एजुकेशन में 3-4 चीजें आपको देखनी है. फर्स्ट, कैन यू अफोर्ड इट?
क्योंकि जब तक आपका एप्लीकेशन जाएगा नहीं, जब तक वो वापस आएगा नहीं, स्कॉलरशिप कोई गारंटी नहीं कर सकता। तो आप ये अपने माइंड में बना के चलिए कि मेरे को तो 0% स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ यूएस यूके? चलो मैं एजुकेशन अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकता हूँ? राइट। सेकंड, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्या वहां पे जाने के बाद वो कंट्री का रिस्क फैक्टर क्या है? आर दे ओपन फॉर जॉब्स? आर दे ओपन फॉर पीआरशिप्स? आर दे ओपन फॉर सिटीजनशिप्स? इफ दे आर नॉट, डोंट डू इट, Then there's no point. then there's no point. Yeah. तीसरा, ROI, Hmm. return on investment. I have people who've taken up great colleges during COVID. Okay. क्योंकि जो बेस्ट माइंडसेट थे इस कंट्री के, उन्हें तो कोविड में ये चिंता हो गई कि एक 14 इंच की स्क्रीन के सामने जो 2 साल मुझे लैपटॉप के सामने स्पेंड करने हैं, उसके लिए मैं 30, 40, 45, 50 लाख हार्वर्ड, वॉर्टन, स्टैनफोर्ड में क्यों दूं? हाँ. पर तो मैं 14 इंच की स्क्रीन के सामने ही रहा हूं। Yes. बट उस टाइम पे जब इतने क्वालिटेटिव एप्लीकेशंस नहीं जाते थे, तो परसेंटाइल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में कट ऑफ हुए। Came down. Yes. अब जब मुझे पता है कि मैं जिंदगी में कभी हार्वर्ड, वॉर्टन, स्टैनफोर्ड, एनयूएस, एसएमयू, एनटीयू, बेस्ट यूनिवर्सिटीज जा ही नहीं सकता, और एक मीडियोक्रिटी के पैरामीटर पे मुझे एडमिशन मिल रहा है, ले लो। सो दीज आर मल्टीपल रीजंस, बट इफ आई हैड दैट मनी, if I was able to afford, if that risk-taking ability, I would have given my child international education exposure. And even if I don't have it, I can look at a short-term course. Okay. I can pick up a summer school in Harvard Institute. Okay. I can pick up a mathematics internship in Harvard Institute where they pick up a student and they pay you $6,354 per month to study there. Are the workshops, the Yes. internships, and all these placements and छोटे-छोटे everything, programs even भी करा सकते हैं। extracurricular activities, are they helpful in the like So again, future? activities are need to be divided in two parameters. One is extracurricular activities, the other one is co-curricular activities. Co-curricular activities. Extracurricular activities में debating, MUNs, leadership roles, Yeah. student council member, environmental work, Which is done community usually in services. schools. ये सारी चीजें हुए extracurricular, Hmm. जिसमें आपकी leadership ability, time management skills, आप पढ़ाई के अलावा क्या हो, personality के बारे में बताता है। Co-curricular activities है, मुझे mathematical modeling करनी है, उसी में मैंने एक research paper लिखा। Okay. मुझे आगे मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है, उसके बारे में मैंने एक इंटर्नशिप कर ली डेटा बेस्ड कंपनी में। Okay. मुझे मैथमेटिक्स में कुछ करना है, उसके बेसिस पे मैंने एक बुक लिख दी। Then obviously these things are going to be very helpful. सो ये एक माइंडसेट, ये एक आइडियोलॉजी देता है कॉलेज को, दैट आप 3-4 सालों से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। And you have an edge over others. You have more Absolutely knowledge right. about आप the अगर subject, कोर्सेरा से या एडेक्स से या फिर अपग्रेड से किसी गुड प्लेटफॉर्म से सर्टिफाइड कोर्स कर रहे हैं, कोर्स तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, बट यूट्यूब टेस्ट नहीं लेता ना आपका। हाँ. तो एक 10 घंटे 20 घंटे का ये सर्टिफिकेशन कोर्स आपकी प्रोफाइल में ऐड करता है, और दूसरी बात ये आपको वैलिडेशन दे देता है। हाँ. तो ये प्रोफाइल बिल्डिंग आपके सीवी में फ्लैम्बॉयंसी नहीं ऐड करती सिर्फ, ये आपको वैलिडेशन भी देती है कि आप ये करना चाहते हो नहीं करना चाहते। Right. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, फ्लैम्बॉयंसी तो है ही ना। रीना, मीना, पिंकू, इंकू, मिंकू, टिंकू सभी 95% ला रहे हैं, तो आपका 95 मेरे 95 से बेटर कैसे है? Right. तो वो प्रोफाइल बताता है। और इस प्रेशर में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा है, एंड एज अ रिजल्ट अब तो 9th स्टैंडर्ड से, आई थिंक उससे पहले से ही दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंसेस। 6th स्टैंडर्ड, इतना 6th स्टैंडर्ड, इतना प्रेशर, मतलब छोटे छोटे बच्चों पे कि पहले तो स्कूल का करिकुलम, and then you are preparing for entrances which you have to for which you have to appear after grade 12th. करेक्ट। So what is the right age कि आपने जो भी entrances देने हैं कॉलेज के लिए, what is the right age or the right time to start preparing for them, and also is dropping a year good? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देयर इज नो राइट टाइम फॉर प्रिपरेशन। जैसे मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट या मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट, वो जनरल एक्सेल डबल एक्सेल की शर्ट नहीं है। उसका तो 1 इंच का बटन भी अगर गलत स्टिच हो गया, आपका शर्ट मिसफिट हो जाएगा। मैं ही नहीं कह रहा गलत फिट हो जाएगा, मिसफिट हो जाएगा। मिसफिट हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है। एक तो गलती है पूरी गलत हो गया, मिसफिट है कि मतलब छोटी गलती हुई है, बाद में रिकरेक्ट हो जाएगी। हाँ. आप अगर बच्चे को सपोज सही टाइम पूछ रहे हैं, तो कोई सही टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन करने में किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 2 लगते हैं। तो कुछ लोग 11th में प्रिपेयर करते हैं तब इसको क्लियर कर पाते हैं, कुछ लोग सिर्फ 12th करते हैं तो क्लियर कर पाते हैं, कुछ लोग सिर्फ क्रैश कोर्स में क्लियर कर पाते हैं, कुछ 9th स्टैंडर्ड से एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं और तब भी क्लियर नहीं कर पाते।
तो ये Correct. प्रिपरेशन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है. आई विल But नॉट बी एबल the टू way गिव यू जनरल parents आंसर. panic करते हैं and then especially वो parents की एक friend ने तो या दो friends ने join कर लिया क्लास में and then they get to know अच्छा इसने तो already start कर दिया, हम तो पीछे रह गए, कुछ पेरेंट्स हम का तो 10th प्रेशर में आ है, गए, हमने कुछ start ही नहीं पेरेंट्स किया. चिल्ड आउट है. जितना पेरेंट अवेयर है हम्म. उतना वो चिल्ड आउट है. आप इग्नोरेंट नहीं हो सकते. इग्नोरेंस इज ब्लिस इज ओनली इन साइकोलॉजिकल मैटर. अब अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, अप्रैल के महीने में एक स्कॉलरशिप का पेपर होता है यूक्लिट, ओके जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में 30 to 100% की स्कॉलरशिप देता है. ओके अब 10th के बोर्ड एग्जाम्स जब 24-25 मार्च को खत्म होंगे और 10 दिन के अंदर यूक्लिट होगा, तो मैं तो ऑलरेडी गोवा, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, शिमला, हिमाचल में छुट्टियां मना रहा हूँ. आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो ना करो, आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिट का पेपर अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा, जब मैं 11th में होऊंगा, क्योंकि वो लाइफ में दूसरी बार नहीं होगा. राइट. आपको ये पता होना चाहिए कि हंगरी में स्पाइंटेंडियम हंगरी करके एक पेपर है. आई एम सेइंग दिस रॉन्ग, मेरे को स्पेलिंग एग्जैक्ट नहीं पता, ओके बट ये एक पेपर है जो हंगरी में मुझे 100% तक की स्कॉलरशिप दे सकती है. अच्छा. ये मैं दे सिर्फ 11th-12th में पाऊंगा. अगर 12th क्लास का सितंबर चला गया तो मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हूँ. फेयर एंड लवली माइट मेक्स यू लुक ब्यूटीफुल, but Fair and Lovely is much more effective cream to you, to me than you. आप Fair and Lovely इतना नहीं यूज करते होंगे जितना मैं करता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि Fair and Lovely आपको 5.5 लाख रुपए की हर साल की स्कॉलरशिप देता है टू अ गर्ल चाइल्ड. अच्छा. एंड टिल द एज ऑफ 30. ओह. नॉट ओनली टिल द एज ऑफ 18, 19, 20, टिल द एज ऑफ 30. बट उसके लिए जो पेपर्स होते हैं वो आपको पता होना जरूरी है. आप प्रिपरेशन करें. You need to be more aware. You need to be obviously on your toes about के opportunities मेरे पास हैं. Got it. पैनिक से नहीं होने वाला, फोमो से हाँ, नहीं होने वाला, हाँ. कोचिंग से तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला. बिल्कुल नहीं होने वाला. राइट. इट इज जस्ट स्ट्रेसिंग योर चाइल्ड मोर. जो ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे आज से 2-3 डेकेड्स पहले, वो एक टेस्ट लेते थे. आने से पहले एक टेस्ट दो. एंड वो कल्चर बहुत अमेजिंग था. आपने टेस्ट दिया, आपने 100 में से 70 क्वेश्चंस करे, मैंने 100 में से 10 क्वेश्चंस करे. एक जेन्युइन टीचर कहेगा तुझे सिर्फ 30 क्वेश्चन करने की जरूरत है, तू 2 महीने वाले कोर्स में आ जा, तुझे अभी आने की जरूरत नहीं है. That's the right way to actually. That's a good approach. मेरे को 100 में से 100 की जरूरत है बेटा, हाँ. तुझे कोचिंग और गाइडेंस की जरूरत है, तो तू आ जा. हाँ. और तू तो इस कोचिंग के अलावा भी एक्स्ट्रा क्लासेस में आ. तो वो 6th में चाहिए, 7th में चाहिए, 8th में चाहिए, 9th में चाहिए, 10th में चाहिए. वो आपका प्री सेट एग्जामिनेशन बता पाए. Most of the times, parents are more motivated than children. How to No, deal with this? they're not मतलब motivated. पेरेंट्स को ज्यादा वो है, बट उनको ये भी प्रॉब्लम है हमारा बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है. वो तो ये पढ़ते ही सिर्फ स्ट्रेस कंडीशंस में, जब एग्जाम सिर पे आता. मोटिवेशन ना 4 घंटे चलता है. परसिस्टेंस, डिसिप्लिन, ये चलता है. परसिस्टेंस का मतलब है रोज सेम रूटीन फॉलो करना. Can you tell us what are the new age career options that will be in demand in next 10 to 15 years? Most importantly, I'll start this answer with the statement that careers what existed 10 years back don't exist now. Right. And careers what exist now will not exist 10 years later. AI will take over. No, not AI will take over. It's a myth probably. I know there are a lot of stats and data to validate this. But you need to understand ये हमारे बच्चे और students और parents जो सुन रहे हैं, उनको 3 चीजों में differentiate करना जरूरी है. अच्छा. Career, course और college. सुनने में जितने क्लोज हैं उतने ही ये डिफरेंट है. आपका कोर्स आपको करियर की तरफ लेके जाता है. अब आप कोर्स करते हैं कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस में, जो आपको करियर बनवाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का कोई कोर्स होता, आजकल यूनिवर्सिटीज दे रही हैं, स्कूल्स भी दे रहे हैं, बट अगर ये कोर्स होता, मैं आज एक 55 या 45 ईयर ओल्ड को ना एआई प्रैक्टिस करते हुए ना देखता. उसने तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर्स में कोई जीनियस चीज करी थी कॉलेज में. और आज 55 की एज में वो सिर्फ एक 20, 25, 100, 200, 500 घंटे का सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद एआई एक्सपर्ट है. तो जो कोर एसेंस है वो मैथ, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर्स है. राइट. जिसके बेसिस पे वो आज डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है. सो आज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है, 10 साल पहले तो नहीं, 15 साल पहले तो नहीं सुना होगा. और 15 साल बाद आप एक हकूना माटाटा नाम का कोर्स या करियर सुनो तो हो सकता है ना.
बट उसका कोर एसेंस तो इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स यही इन्हीं चीजों पे होगा। रहेगा। करेक्ट। तो ये वरी मत करिए। और न्यू एज करियर, मेरी बारी में जब मैंने अपने स्कूल में करियर काउंसलिंग सेशन अटेंड किया था, तो मेरा लिए न्यू एज करियर था होटल मैनेजमेंट। अच्छा। क्योंकि ओब्रॉयज में ओसीएलडी में एक प्रोग्राम होता है जहां पे वो आपको 5 से 7 हजार रुपए महीना पढ़ने के देते हैं। राइट। तो मुझे and this was actually huge for स्टेप जब वो प्रोग्राम नया था। आया हाँ, था। तो हाँ। मुझे ऐसा लगता था, अरे वाह, ये न्यू एज करियर है। आज कोई होटल मैनेजमेंट शायद नहीं करना चाहता, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाउनफॉल जा रहे हैं। राइट। तो आज एआई के जितने ऊपर जा रहे हैं उतने ही डाउनफॉल जाएंगे, क्योंकि आज से अगर 6 साल पहले आप जेई के स्टैटिस्टिक्स उठाओ तो 9.6 लाख एप्लीकेशंस थे, आज सडनली 14 लाख है। वो सिर्फ एआई की वजह से ही है। ओके। सो न्यू एज करियर, यस डेटा साइंस, न्यू एज करियर इज यस एआई, बट न्यू एज करियर में आज की डेट में आइसक्रीम टेस्टर्स भी हैं। ओह। So people like me who have to maintain their weight and health can actually go to a course in chemistry and pick up a course which is ice cream tasting. Someone who's fond of shopping can go towards a career which is a mystery shopper. जहाँ पे Gucci, Armani या फिर, and there is a career which is known as alcohol tasting. Yeah. Chemistry में I have recently heard about this. हाँ, Yes. so chemistry का एक career है ना, हाँ. core तो chemistry है। तो जितने इवेंट्स बढ़ते जाएंगे, जितना इंस्टाग्राम बढ़ता जाएगा, जितना ट्रैवल एंड टूरिज्म बढ़ता जाएगा, अल्कोहल टेस्टर्स का बिजनेस बढ़ता जाएगा। बट डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज द जेनजी थिंग टू स्टे विद। Okay. Either you do mathematics and develop AI, or you don't do mathematics and stay with usage of AI. But that will improve your performance. So data subjects are the same. Subjects are absolutely same. Okay. But if you are into policy making, again it's a huge thing. Okay. Good with history, good with economics, good with sociology, good with political science, stay with policy making. Okay. So आपका core strength क्या है? Interpretation, representation, expression है. Go with this. There is a course called BSW LLB, Bachelors of Social Work LLB. Okay. Which will straight away take you towards policy making or take you towards civil services. So there's this marketing gimmick called New Age Careers. Okay. So that people click on that YouTube, click on that Instagram, and people look at it. It's just a marketing gimmick. Just one last question. What is your advice to parents? How can they help students cope up stress? How could they help their children go through this phase when they are actually growing up? They're teenagers and they have a lot of things to, explore. They're already going through a lot of pressure. And then there is this pressure of exams as well. Then there's peer pressure. Then there is pressure of meeting the expectations of parents. Then there is this comparison pressure. So what is the parents' role and how can they help their own children to, make it easier for them? हर बच्चा अलग है, उसके साथ ट्रीटमेंट अलग है, बट एक ट्रीटमेंट है जो हर बच्चे के साथ इफेक्टिव है, एंड दैट इज कम्युनिकेशन. Right. Communicate in their language. If you know the slangs, use slangs. If you know the Gen Z language, use a Gen Z language. You need to use those things. YOLO, what I learned today. Yeah. So communication is the key to solve all these queries. And there is no problem. It's a query. And मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ, ये प्रॉब्लम हमारी बारी में भी थी, और मैं भी ये गारंटी से बोल रहा हूँ, ये ऑप्शंस हमारी बारी में भी थी. A Tata Institute of Social Sciences has been since decades. तब भी लोगों को नहीं पता था, आज भी लोगों को नहीं पता. Right. तो प्रॉब्लम सेम है, क्वेरी सेम है, आंसर सेम है. It is just that you need to communicate to the child and give him that confidence कि अगर मेडिसिन नहीं भी हुआ तो तेरे बायोलॉजी के प्यार को लेके हम बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो लाइफ मेडिकल साइंसेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये सब कर सकते हैं. टेंशन मत ले. अगर नीट में कुछ नहीं भी बनाना तो ये 5-6 बायोलॉजी के ऑप्शंस वी विल एक्सप्लोर फॉर यू. अगर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं बना तो मैं पब्लिक अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ACCA या फिर कुछ भी रिलेटेड टू अकाउंट्स हो जाएगा. जब मुझे पता है कि CA के अलावा ये 6 ऑप्शंस हैं, तो किस बात का स्ट्रेस? 6 में से कहीं तो होगा, और नहीं भी होगा. सपोज नहीं भी होगा, अगले साल देख लेंगे. इट इज नॉट ड्रॉपिंग अ ईयर, श्वेता, इट इज इन्वेस्टिंग अ ईयर. Investing a year.
कई सारी कंट्रीज में आज भी 12th के बाद 1 साल का ब्रेक दिया जाता है फॉर इंटर्नशिप, फॉर एक्सप्लोरिंग अदर कंट्रीज, टू डू सोशल एक्टिविटी एंड देन डू कॉलेज. So if your child still doesn't knows what is his area of interest, or still he's unsure of which stream he needs to take, don't worry, he's not a red flag. Give him his time to explore his options, and yes, keep telling him that we have got your back and we are with you, and give him his time to decide. And thank you so much, Anubhav, for being with us today. And this is a small token of thanks from Ashiana Home Decor. Pleasures, man. Thank you so much for being with us today. And thank you for simplifying the career counseling and answering so many questions, which will really help the students. Thank you so much, everyone, for being with us today. Hope this episode was helpful. I'll catch you in the next one. Till then, keep spreading love.